ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଯାହା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍-19 ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଘରେ ରହିକି ପଢ଼ିଥିଲା। ଆଜି ତାର ରିଭିଜନ୍ କରିବା। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରାବନ୍ଧିକା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ରିଭିଜନ୍ ବା ପୁନଃ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିବା। ଦେଖ, କୁହାଯାଉଛି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ଜନନୀ ଏହି ଜନ୍ମଭୂମି ଠାରୁ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି, ଆମେ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ପରିଚୟ କାହାକୁ ଆଜି ଅଛପା ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ, ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଂଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଥିଲା ଅଧ୍ୟାପନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଗବେଷଣା କରିବା। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ, ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭୃତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପଢ଼ୁଛୁ ତାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ନିଜର ଗାଁ, ନିଜର ଦେଶ, ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ମହାନ। ତ ଆମେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ନୀତିରେ ବାନ୍ଧି ହେବା, ଏହି କଥାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ କିଏ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ବିଶାଳ ଏସିଆ ମହାଦେଶ କଥା, ତା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର କଥାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ଭୂଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଂ ଅଞ୍ଚଳ। ତ କାହାକୁ ସେ ଜନ୍ମଭୂମି କହିବେ ଏହି କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଗ୍ଲୋବ୍ ବା ମାନଚିତ୍ର ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ତ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଯିଏ ଆପଣେଇ ନେଇପାରେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏହି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି। ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ସଙ୍ଗୀତ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିନଥିବ ଶୁଣିବ। ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବା ମଧୁମୟ ସଙ୍ଗୀତ ତାହା ଜାଣିବ। ପଲ୍ଲୀ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଖିଚିଂର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ, ଯେଉଁଠିକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଏବଂ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତା ମଧ୍ୟ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସେହି କବିତାଟି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ କରିଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଇକି କିଛି ଅଂଶ ତୁମ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। କାହାକୁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କହିବି? ଏହି ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ, ବିଶାଳ ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷ, ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ବା ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ। ଲେଖକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସିଛି। ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ଏ ବିଶାଳ ପୃଥିବୀ ନା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଥିବା ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ନା ତା ଭିତରେ ଥିବା ବିଶାଳ ଭାରତବର୍ଷ, ନା ତା ଭିତରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା, ନା ମୋର ପଲ୍ଲୀ ଗାଁ ଜନ୍ମଭୂମି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କାହାରିଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇନଥିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ପଡ଼ି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ କଲି, ଯେଉଁଠାରେ ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ପାଇଲି, ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଷ୍ପ, ଫଳ, ଶାକ, ତଣ୍ଡୁଳ ଢାଲି ଦେଇ ଶିଶୁପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କଲା, ସେହି ପଲ୍ଲୀ ହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ନିଜ ଗାଁକୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଭୂମିସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଯେଉଁଠି ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ ଲେଖକ, ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ସେହି ମୋର ମାତା, ସେ ହେଉଛି ମୋର ମା, ଧାତ୍ରୀ। ସେ ପୁଣି ଧାଇ ମା ଧାରଣ କରିଛି, ପୁଣି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ମୋତେ ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇଛି। ଆୟୁସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବେଶୀ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେ ଆୟୁସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଘନିଷ୍ଠ ହୁଏ ଆମର ସେତେ ଘନିଷ୍ଠ ହେଇ ଚାଲେ, ତା ସହିତ ଆମର ଛାଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଅଛି ଏଠାରେ ନୂଆ ବହିରେ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ବହିର କିଛି ଅଂଶ କଟିଯାଇଛି, ତ କ୍ଷୀଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ମୁଁ ଭାସି ଚାଲିଛି।
मोर जन्मभूमि को फेरी जावा पाई मोर नैतिक साहस नाही। या भितर मोर पुनर्जन्म घटी जाइछि आउ मु तार से रूप को केवल जातिस्मर परि स्मरण करे। राशि राशि शालतरु मध्यरे तटिनी बेष्टित भंजकीर्ति किरटिनी मोर जन्मभूमि मो आखि आगरे भासी जाए, किंतु तार कोल को फेरी जीवार पाई मोर नैतिक साहस हुए नाही। एई कथा कहिबार अर्थ जे लेखक बहुदिन धरी बाहरे रही जिबारु विदेश रे रही जिबारु तांको गाँ को आउ जाई पारि नाहंती, एमिति कि कहउछंती मोर नैतिक साहस हेउ नाही। एवं से भंजकीर्ति किरटिनी कथा मने पकाउछंती। उपेन्द्र भंजंकर शब्द तमाल सबु पुणी सेठी मने पकाउछंती तटिनी बेष्टित तांकर गाँ राशि राशि शालतरु। या कथा कहिबार अर्थ माने घंच अरण्य भरपूर थिला सेई मयूरभंज अंचल तांक गाँ सेठाकु से आउ जाई पारि नाहंती। एमिति कि कहउछंती यह मोर व्यक्तिगत समस्या नुहे, यह समग्र शिक्षित समाजर समस्या। एक कथा कहिबार अर्थ जे सबु शिक्षित व्यक्ति एमिति निज गाँ छाड़ी जाती। धर्मांतर ग्रहण कलापरे बहु धर्मांतर दीक्षित व्यक्ति जेपरि धर्म पाखरे समस्त मानविकता को उत्सर्ग करी सेमानंक नाम पदवी भाषा आहार व्यवहार वेशभूषा एमिति कि सबुकिछि बदलई दियंती एवं शेष बेलू निजर जातीयता भूली जेपरि निजर जन्मभूमि को सुद्धा अस्वीकार करती, ठीक सेहीपरि संख्यातीत शिक्षित व्यक्ति मध्य प्रचलित शिक्षा पाखरे सेमानंक समय एवं समस्त मानविकता को उत्सर्ग करी शेष बेलू निजर जन्मभूमि को सुद्धा पासोरी पकाती। तो लेखक कहउछंती समग्र शिक्षित समाज एई प्रकार बाहर रहीगला परे निजर धर्म जेमिति बदलई दे जड़े मनीष एवं निजर धर्म भूली जाए, ठीक सेहीपरि बाहर रही शिक्षित व्यक्ति मध्य निजर गाँर परिचय मध्य भूली जाए बेले बेले। यही कथा कहउछंती। परवर्ती पर्याय शिक्षा समापन संगे संगे सेमानंकर एक प्रकार पुनर्जन्म घटी जाए। कहार शिक्षित व्यक्तिंकर पुणी थरे जन्म हेला भलिया लागि जाए। पल्ली ग्राम को फेरी जाई जीविकार्जन करने दूरे थाउ सेठारे किछि काल अवस्थान करने मध्य संभवपर हुए नाही। एणु थरे थरे भावे जे ग्राम को जाई कौन करिवि, जदि ग्रामर उन्नतिकर कार्यपाई यथासाध्य अर्थ ही मोर एकमात्र दान हुए ताहले मु सेतिकी काम ग्राम को न जाई मध्य ताहा करि पारिबि। जन्मभूमि सहित मोर आउ कि प्रकार संबंध अछि एई प्रकार मध्य किछि जन करंती एवं बाहरे चाकरी बाकरी करुथिले टंका पैसा पठेई देकी गाँर सेई मोह गाँर माटीर महक को भूली जाती। बहुवाद विसंवाद सत्वे पल्ली गाँर नरनारी मध्य जाति धर्म निर्विशेष गोटे एक परिवारत्पर परंपरा गढ़ी उठी थाए। केही भाई केही भौणी केही कका केही खुड़ी इत्यादि भाव में समस्त ग्रामवासी परस्पर मध्य परिचित होई थांती। मोर जन्मभूमि सहित ए मधुर संबंध मोर आउ नाही। ग्रामटी याकर भाई भौणी कका खुड़ी मामू माई मौसा मौसी इत्यादि सबु पर होई गलेनी। चेष्टा कले मध्य ए मधुर संबंध आउ फेरी पाइबा संभव नुहे। लेखक तांक गाँर एक निच्छक प्रतिछवि एठारे बाढ़ी देउछंती। देख गाँव में गढ़ी उठिथिबा केमिति एक परिवार पर परंपरा विषय एक फोटोचित्र मध्य तुमको देखई दिया जाउछि। ग्राम मुंडरे सार माउसी तार छोट पिंडाटी बहु वर्ष धरी प्रस्तर मूर्तिटी परि बसी आसीछि। तांको गाँर सार मौसी केमिति गोटे पथर मूर्ति परि बसीछि गाँर पिंडारे ताहा गोटे फोटोचित्र देकी तुमको बुझा जाउछि। आगे देखिबा मात्रे लेखकंकु से पचारुथिला केबे आसिलु बापा, किंतु आजिकाली लेखकंकु देखिले कहे केबे आसिल बाबू। तार कारण हेला लेखकंकर वेश पोशाकर परिवर्तन चालीचरणीर परिवर्तन। ग्रामर मझिरे गोविंदा भाईर क्षुद्र कुटीर आउ जड़े व्यक्ति रहुथिला गोविंदा भाई। से आजीवन अकर्मा और अविवाहित रही से तार क्षुद्र कुटीर को दुर्ग करी समग्र विश्व विरोध में विद्रोह घोषणा करी आसीछि। आगे देखा हेले बहु मान सहित से मते तार कुटीर रे बसाउथिला एवं मनबोध चौतीसा व्याख्या करुथिला। आज मु सेई कथा आउ पाउ नाही बोलिकी लेखक कहउछंती। देख केते सुंदर भाव में मनबोध चौतीसा जाकि भक्तचरण दास कर कहई मन आरे मोबोल कर कलाश्री मुख बारे देखिबा चाल केते दिन को मन बांधिछु आंट कि घेनी जीवु तोर छुटिले घट। मन मृत्यु पर कौन नहीं कि जीवु तू मिसी था मनीष मानक गहन रे। यही कथा लेखक कहवाकू चाहिछंती जे से लेखक कहउछंती जे मु सतचेष्टा कले मध्य तार पूर्व प्रत्यय आउ फेरी पाए नाही। ग्रामटी जाकर नवागत अतिथि परिपूर्ण हो गलानी। एमितिक जो आड़ को चाहिए शीर्ण मलिन उलग्न कृशोदर लंबोदर अवांछित अवहेलित शिशुमानंकर समावेश देखा जाए। एमानंक मध्यरु केही सुद्धा मते जानती नाही।
केबे केबे देखा हेले आफ्रिकार नवागत जेब्रा बा जिराफ को चाहिला परी एमाने मते खाली चाहि रही थांती जे गाँव रे जो नुआ नुआ शिशु माने जन्म ग्रहण करिसंती लेखक सेमानंकु जानंती नाही किंबा सेमाने भी जानंती नाही काहार पेट लंबी जाइछि तो काहार माने पशि जाइछि कि ब्रुकोदर कि उलग्न एमिति अवस्था रे थांती एवं लेखक केबे गाँ को आसिले सेमाने देखंती गोटे नुआ जेब्रा कि जिराफ आसी जाइछि बोली ग्रामवासी मानक मध्यरु जो शिक्षित और अर्धशिक्षित नवजुवक युवक मैंने चाकरी न पाई जन्मभूमि छाड़ी नाहंती से माने राजनीतिर आश्रय नेले एमानंक मध्यरु केही कांग्रेसी हैला तो केही गणतंत्री केही कम्युनिस्ट हैला तो केही सोशलिस्ट हैला जदि केही राजनीति रे मिसी पारिला नाही बा मतवाद अंतर्भुक्त हैला नाही ताहेले से एमानंक मध्यरे कोनोसी थिरे अंतर्भुक्त हैला नाही अन्य कथा दूरे थाउ लेखक कहउछंती जे एमानंक सहित मु पल्लीर शोभा को सौंदर्य को उपभोग करि पारे नाही किंबा तांक सहित साहित्य चर्चा मध्य करि पारे नाही एमितिक राजनीतिक मतवाद अनुसार एमानंकर मानसिक परिवर्तन मध्य घटी जाइछि जो लोक माने किछि काम धंदा कले नाही गाँ रे रहिले तांकर मानसिक परिवर्तन घटिछि एवं से माने केमिति देखंती पृथ्वी को देख एमाने पुष्पित पलाश वनरे देखंती विद्रोहर बह्नि स्थलपद्मरे देखंती आहबर रक्त और आनत कृष्ण चूड़ारे देखंती अनागत जुगर रक्त केतन एणु एमानंक मन सहित गति करि चालिबा संभव हुए नाही केते सुंदर भाव लेखक बुझाई दौरान जे प्रकृत में जो मानक सहित मु सुंदर माने पुष्पित पलाश वन को देखिबार कथा से माने तो सेठी गोटे रक्त देखंती युद्ध देखंती गोटे आहबर रक्त केतन माने भविष्यत युद्ध हेबार देखा दिए तांकु एवं एमाने सबुबले अहिंसा नुह हिंसा बाद विसंवाद भितरे चालंती तेणु लेखक तांक सहित जाई पारंती नाही बोलिकी कहउछंती आम पाठ्यांशरू जानिबा केतोडी गुरुत्वपूर्ण कथा गोटे पॉइंट है संख्यातीत शिक्षित व्यक्ति धर्मांतर दीक्षित व्यक्ति परि समस्त मानविकता को उत्सर्ग करी जन्मभूमि को पासुरी दियंती शिक्षा समापन पर शिक्षित व्यक्ति मानकर पुनर्जन्म घटी जाए सबु बाद विसंवाद सत्वे पल्ली ग्रामर नरनारी मध्य जाति धर्म निर्विशेष गोटे एक परिवार पर परंपरा गढ़ी उठी थाए ग्राम मुंडर सारमाउसी तार छोट पिंडाटी बहु वर्ष धरी प्रस्तर मूर्तिटी परि बसी आसी ग्राम मझिरे गोविंदा भाई तार क्षुद्र कुटीर को समग्र विश्व विरोध में विद्रोह घोषणा करि आसी ग्रामटी जाक नवागत अतिथि परिपूर्ण हो गलानी ग्राम शीर्ण मलिन उलग्न कृशोदर लंबोदर अवांछित अवहेलित शिशु मानकर समावेश देखा जाए ए विषय आमे ऑनलाइन क्लास रे आलोचना करिबा आसंता काली एवं कठिन शब्दार्थ गुड़िक तुमर दिया जाइछि बहिर ताहा देखिब तो ऑनलाइन क्लास माध्यम रे आमे एटा पढ़िबा तुमको मु विशेष सबु विवरणी बुझेइबी। धन्यवाद।